bigotry and prejudice and in support of harmony as the bedrock of our nation's civilizational values has been that of Prime Minister Narendra Modi. We have heard him stress this repeatedly, whether from the Red Fort, when he spoke out against casteism and communalism, or during his frequent public interventions, whether in Mann Ki Baat or from the electoral platform or in interviews to media. His pain and anguish at certain tragedies has been not just apparently but publicly stressed. The essence of his message, delivered repeatedly during these elections and elsewhere, is best summed up in a powerful line. Hindus and Muslims can either fight each other or they can unite to conquer the common enemy, poverty. The purpose and vision of the Prime Minister has been transparent: mission prosperity, development for all, and an end to the historic curse of poverty. A morally and politically bankrupt Congress leadership is playing with fire by stoking up sectarian passions for electoral gain through the projection of falsehoods. It is a desperate attempt by a fading dynasty to retain marginal relevance at a time when it is facing utter disaster in the Bihar elections. The empty spaces at Sri Rahul Gandhi's meetings in Bihar provide a visual foretaste of the results to come. The dynasty is indulging in the politics of despair, having run out of ideas and lost all mooring to reality. Mrs. Sonia Gandhi should be leading demonstrations in Bangalore against her own government for not being able to arrest a single person in the tragic death or killing of rationalist M.M. Kalburgi, to give only one instance of its hypocrisy and dubious morals. Or if she has more time, she should be leading demonstrations against Mulayam Singh Yadav. The Congress has become the real enemy of peace, social harmony, and economic progress in our country. We assert that the people of Bihar will not be fooled by such tactics, and Bihar's voters will continue to vote in the spirit of harmony that they have always displayed. The dynasty has also been rattled by the further revelations of corruption by the son-in-law of Mrs. Gandhi, Robert Vadra. False drama will not screen these facts from the people. अब हिंदी में पूरा अनुवाद करने का तो संक्षेप में इसी को अगर इंटॉलरेंस, बिगेटरी के खिलाफ किसी की आवाज जोर और जबरदस्त तरीके से उठी है, वो है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। उनकी आवाज देश की एकता और हमारे समाज के सिविलाइजेशनल वैल्यूज पे बार बार उठी है। आपने जब वो लाल किला से देश को संबोधित कर रहे थे, तब उन्होंने शुरू में ही उन्होंने कास्टिज्म और कम्युनलिज्म के खिलाफ बड़ी जबरदस्त आवाज उठाई थी। उनके दिल का दर्द बहुत बार जाहिर हुआ है जब ऐसी घटनाएं हुई हैं जो अनुचित हैं, जो नहीं होनी चाहिए थी हमारे समाज में, हमारे देश में। अगर उनका जो मैसेज है उनको संक्षिप्त में, और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात वो खुद बार बार कहे हैं, बिहार की इलेक्शन के दौरान कहे हैं, इंटरव्यूज में कहे हैं, जब मौका मिला है कहे हैं, कहते हैं कि हिंदू और मुसलमान को तय करना पड़ेगा कि क्या हम अपने एक दूसरे से लड़ेंगे या हम मिलके हमारे जो कॉमन दुश्मन है गरीबी, उसके साथ उसका मुकाबला करेंगे, उसको खत्म करेंगे। उनका लक्ष्य
उनका विजन अगर एक फ्रेज में मैं डालना चाहूं, वो है मिशन प्रॉस्पेरिटी, डेवलपमेंट फॉर ऑल और गरीबी को खत्म करो। कांग्रेस के जो नेता हैं वो आज मॉरली, पॉलिटिकली बैंकरप्ट हो चुके हैं। वो आज डेस्परेट होके एक आग से खेलना चाह रहे थे, हैं जो काफी खतरनाक आग है। ये पहली बार नहीं है जब वो ऐसे आग से खेल चुके हैं। लेकिन एक डेस्परेट, एक डायनेस्टी जिसके पास ना अब कोई पॉलिसी है, ना आइडियाज है, ना वाकई सच्चाई से कुछ लेना देना है, वो आज एक झूठा ड्रामा बना रही है। और झूठा ड्रामा इसलिए बना रही है कि जो सच्चाई, कड़वी सच्चाई है, जो लोगों के सामने आ रही है, जो सच्चाई करप्शन की सच्चाई है, जो सच्चाई रॉबर्ट वाड्रा की करप्शन, जिसके ऊपर आज भी रेवलेशंस दिन ब दिन आ रहे हैं, थम नहीं रहे हैं, उस सच्चाई को उछल करने का ये ड्रामा है। बिहार में इनको पता चल गया है कि लोग वोट किस तरफ दिए हैं और किस तरफ देने वाले हैं। राहुल गांधी जी जब जाते हैं बिहार में, तो भीड़ शब्द का तो इस्तेमाल करना ही मैं समझता अनुचित होगा। इतने कम लोगों को भीड़ ही नहीं कहा जा सकता। उनसे ही पता चल गया उनको कि उनके नतीजे, रिजल्ट क्या होंगे। और इसको छुपाने के लिए वो झूठा ड्रामा कर रहे हैं। आज कांग्रेस जो है देश की अमन की, देश के यूनिटी की, देश के सोशल हार्मनी की, देश की इकोनॉमिक तरक्की की दुश्मन बन गई है। हम कहना चाहते हैं कि बिहार के लोग इस ड्रामा से उनको बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता है। वो उसी अमन, चैन, शांति और भाईचारगी के साथ वोट देंगे जैसे वो हर वक्त दिए हैं, और उसी चैन, भाईचारगी के साथ बिहार में लोग रहेंगे। भाई ये सवाल जो है बार बार उठता है और बार बार जवाब दिया जाता है, और मैं समझता हूँ ये सवाल इररिलेवेंट है, क्योंकि हम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि देखिए, इस सवाल का जवाब आप ऐसा कीजिए, आप खुद टेलीविज़न देख लीजिए और उनके कोई भी मीटिंग देख लीजिए, उनकी जो सपोर्ट है, उनकी जो जोश, लोग जो आ रहे हैं, जो नौजवान आ रहे हैं, जो जोश नज़र आता है, उस जोश में अंजाम लिखा हुआ है, उस जोश में इलेक्शन के रिजल्ट लिखे हुए। सर, अरुण शौरी ने भी कहा है कि पीएम को इंटॉलरेंस पे बोलना चाहिए, वो नहीं बोलते। अरुण शौरी बीजेपी के भी थे, राज्यसभा एमपी रहे, कैबिनेट मिनिस्टर रहे, क्यों इस तरीके से वो बार-बार बोलते हैं? मुझे लगता है अरुण जी को समस्या ये नहीं है कि प्रधानमंत्री नहीं बोल रहे हैं, समस्या ये है कि अरुण जी सुन नहीं रहे हैं। जिस दिन अरुण जी सुनना सीखेंगे उस दिन ये बातें ही नहीं उठाएंगे। शायद अरुण जी को बता दीजिए कि एबीपी न्यूज़ में जब प्रधानमंत्री का इंटरव्यू छपा था, एबीपी टेलीविजन न्यूज़ में, उसके बारे में उनकी क्या राय थी? नहीं, आनंद पत्रिका में तो छपा था, हाँ सॉरी, आनंद पत्रिका में जब छपा था, और फिर शायद टेलीविज़न पे, पीटीआई पे, हर जगह बात नेचुरली प्रधानमंत्री कुछ कहेंगे, तो वो नज़र नहीं आया, वो सुनाई नहीं दिया। क्या कभी कभी हमारे मित्र अरुण शौरी जी कुछ जज्बात के अंधेरे में ना कुछ देखते हैं ना सुनते हैं?
I can't speak about somebody who was in 2005. You know, I don't think he was a member of the party then, but you know. नहीं शौरी जी पर आपने कहा कि वो कई बार जज्बात के अंधेरे में आ जाते हैं इसको आप थोड़ा सा इलैबोरेट करेंगे मतलब ये जज्बात राजनीति में क्या जज्बात समझने वाले समझ जाएंगे. थैंक यू. और तो कुछ नहीं है ना. धन्यवाद.